So we have discussed all the concepts of admission of a partner, जिसमें हमारा sacrificing ratio, determination of new profit sharing ratio, treatment of goodwill, treatment of accumulated profit, losses and reserve, their single entry, and revaluation account. So today I am taking up the last full-fledged question. We have done concepts in part. Now all concepts will be asked in one question only, that will carry 8 mark, and 8 mark में आपको full-fledged question में they will ask revaluation account, capital account and balance sheet, right? So I am taking up 48 illustration of T.S. Grewal. The question is, I am showing you the question as well. This is the question where a balance sheet is given. Following is the balance sheet of Subhash and Asha as on 31st March 2020, sharing profit in the ratio of 3:2. Okay, so what is this? This is the ratio, profit sharing ratio. And on liability side what is given to us? Creditors as it is, अगर कोई adjustment नहीं हुई तो it will go to the balance sheet directly in the new balance sheet. Employees Provident Fund, I told you जो Employees Provident Fund है वो आपको बहुत ध्यान रखना है. Provident Fund कभी भी distribute नहीं होता between the partners, right? So ये it will directly transfer to the new balance sheet. जनरल रिज़र्व हमें मालूम है वी हैव टू डिस्ट्रीब्यूट दिस अमाउंट, तो जनरल रिज़र्व पे आपको काम करना है. वर्कमैन कंपनसेशन रिज़र्व पे इफ़ एनी एडजस्टमेंट इज़ नॉट गिवन इट विल बी अगेन डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन द पार्टनर्स. ओके, द लास्ट थिंग इज कैपिटल. दिस इज ओपनिंग कैपिटल. ऑन द एसेट साइड डेटर्स आर गिवन. डेटर्स में if provision, new provision will be given to you, then it will be calculated. If it is a percentage, like calculate 10% provision या 10% increase कर दो या 500 increase कर दो. आपको अगर कुछ भी दिया होगा you will calculate on this amount of on debtors, not on this amount. Means बिफोर डिडक्टिंग द अमाउंट द एक्चुअल डेटर्स जो है आपको दोबारा कैलकुलेट करने पड़ेगा अगर प्रोविज़न दे रखा है तो. ये वाला प्रोविज़न को हम सिर्फ इंक्रीज़ और डिक्रीज़ के लिए इफ़ेक्ट देखने के लिए करेंगे. ठीक है, मैं आई टेल यू हाउ विल गोइंग टू डू इट, हाउ वी विल डू इट. देन स्टॉक, बैंक, लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी एंड एडवर्टीजमेंट सस्पेंस इज गिवन. ठीक है, तो बिफोर स्टार्टिंग द क्वेश्चन यू हैव टू सी what are given on the what things are given which you need to distribute to the partners. So we have found 3 things here. 2 on the liability side, that is general reserve and workman compensation reserve, and 1 is on the asset side, that is advertisement suspense reserve, advertisement suspense account. Okay, now what is given to us? They have mentioned they admit Tanya, a new partner is admitted. Old partners थे आपके सुभाष and Asha, and Tanya was admitted on 1st April 2020 for 1/6 share. अब आपको ये शेयर ध्यान रखना है to calculate the new PSR. Share in the profit. It was decided that value of land and building be increased by 3,000 and so on. Adjustments are given. So I am taking up adjustment one by one and showing you first of all the revaluation account, how we are going to make it. Okay, the first first we'll make the revaluation account, and this revaluation account के लिए जो हमें एडजस्टमेंट दे रखी है वो है वैल्यू ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग बी इंक्रीज्ड बाय 3,000. हमें मालूम है रीवैल्यूएशन अकाउंट का वी हैव 2 साइडेड, डेबिट एंड क्रेडिट साइडेड, एज वी हैव फॉर एवरी अकाउंट. रीवैल्यूएशन अकाउंट में आपकी जो इंक्रीज इन एसेट्स है, इंक्रीज इन एसेट्स वो आता है क्रेडिट साइड पे, और डिक्रीज इन एसेट्स आता है आपका डेबिट साइड पे. ओके, इट मीन्स क्या मतलब हुआ इस बात का कि इसका वाइस वर्सा लायबिलिटी के साथ होगा. इट मीन्स डिक्रीज इन लायबिलिटी विल
appear on the credit side and increase in the liability will appear on the debit side. ओके, ये दो चीज़ें आपने ध्यान में रखनी है. उसके बाद अपने एडजस्टमेंट को 1 by 1 रीड करना है. फर्स्ट एडजस्टमेंट आई टोल्ड यू इट इज़ गिवन वैल्यू ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग बी इंक्रीज्ड बाय ₹3000. अब बाय का भी ध्यान रखना है आपने. इंक्रीज टू 3000 है या इंक्रीज्ड बाय है, उसमें क्या डिफरेंस है मैं आपको बताती हूँ. इंक्रीज्ड बाय 3000, जो एक्चुअल वैल्यू दे रखी है आपको लैंड एंड बिल्डिंग की, जो एक्चुअल बिल्डिंग आपकी वैल्यू है एक्चुअल जो वैल्यू है लैंड एंड बिल्डिंग की वो दे रखी है 18,000. ठीक है. एंड जो आपको बोला गया है नीचे वो बोला गया है कि 3000 से अमाउंट ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग बढ़ गया. तो हमें यहाँ पर रिवाइज्ड वैल्यू लेनी है इन रिवैल्यूएशन अकाउंट, ना पुरानी वैल्यू ना नई वैल्यू. तो एप्रिसिएशन है, इंक्रीज़ हुआ, तो विल राइट ऑन द क्रेडिट साइड बाय लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट and amount will be 3000. Okay, amount will be 3000. Then the next adjustment is given value of stock be increased by 2500. be increased by, पहले क्या आया था increased by 3000, अब आया है स्टॉक आपका increased by 2500. तो पुराना स्टॉक जितना भी था उसको हमें इंक्रीज कर देना है 2500. अगेन स्टॉक इज एन एसेट्स एंड एसेट्स इज इंक्रीज्ड बाय 2500, तो इट विल कम ऑन द क्रेडिट साइड. राइट. नेक्स्ट दे रखा है आपको प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स बी इंक्रीज्ड बाय ₹1500. अब पहले की जो आपकी प्रोविज़न है वो दे रखा था 1000 ऑलरेडी अपियरिंग इन द बैलेंस शीट. प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स इज़ a liability for us, not an assets. अब पहले 1000 था प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स और अब वो 1000 से 1500 हो गया. इट मीन्स हाउ मच अमाउंट इज़ इंक्रीज, सॉरी 1000 से हमें उसे 1500 और बढ़ाना है. इंक्रीज बाय, इंक्रीज टू नहीं है, इंक्रीज बाय, तो यानी कि पूरा 1500 बढ़ेगा. ओके, सो लाइबिलिटी इज़ इंक्रीज्ड, सो विल राइट ऑन द provision on doubtful debts on the debit side as liabilities increased by 1500. जब लिखा है increased by means वो full amount आपने पुरानी वैल्यू में ऐड कर देना है बुक वैल्यू के अंदर. ओके, द नेक्स्ट थिंग विच इज़ गिवन हियर अ बिल ऑफ एक्सचेंज of ₹10,000 which was previously discounted with the banker was dishonored on 31st 2020 but no entry has been passed for dishonor. Okay, so what does it mean? What does this adjustment say? This adjustment says that bill of exchange जो 10,000 रुपये का था वो पहले डिस्काउंट किया गया विद द बैंकर. डिस्काउंट किया गया मतलब उसका अमाउंट ले लिया गया, हमने पहले बैंक से ले लिया बिफोर द पेमेंट मेड बाय द पर्सन जिसको पे करना था, उससे पहले हमने बैंक से ले लिया था. बट इट वॉज डिसऑनर्ड, इट मीन्स इट वॉज नॉट पेड बाय द क्रेडिटर टू अस, और हमने पहले ही पैसे ले चुके हैं. इसकी एंट्री नहीं की गई. इसका मतलब है व्हेन अ बिल प्रीवियसली डिस्काउंटेड इट्स डिसऑनर्ड, इस केस में हम डेटर अकाउंट को डेबिट करते हैं एंड बैंक अकाउंट को क्रेडिट करते हैं. सॉरी, इट वाज नॉट क्रेडिटर, इट वाज डेटर हु इज़ गोइंग टू पे अस. तो डेटर ने हमें अमाउंट पे करना था 10,000 रुपये और उसने पे नहीं किए थे, लेकिन हमने बैंक से पहले ही डिस्काउंट करवा लिया था बिल को, 10,000 रुपये ले लिए थे. बाद में डेटर जो है वो फेल हो गया उस अमाउंट को देने के लिए. तो जब अमाउंट देने के लिए वो फेल हो गया तो इट मीन्स डेटर अकाउंट अगेन भी डेबिटेड, क्योंकि हमने उसको डेटर को कम कर दिया होगा. एंड बैंक अकाउंट इज़ क्रेडिटेड, मतलब सिर्फ आपने क्या एंट्री करनी है, अपने डेटर्स जो हैं वो इंक्रीज़ करने हैं 10,000. ये बैलेंस शीट में होगा आपका. इस एडजस्टमेंट एंट्री के लिए डेटर हमारे पहले ऑलरेडी जो डेटर हैं वो 22,000 है, उसमें 10,000 वापस से हम अपने डेटर्स को इंक्रीज़ कर देंगे. और जो बैंक है, बैंक में 10,000 जो है वो माइनस कर देंगे, क्योंकि हमें 10,000 रिसीव नहीं हुआ, हमें वापस बैंक को चुकाना पड़ेगा. ओके, सो नो एंट्री विल बी मेड इन रिवैल्यूएशन अकाउंट. दिस विल वी आर गोइंग टू डू इन
बैलेंस शीट. The next adjustment, liability against workman compensation reserve was determined at 20,000 और वर्कमैन रिज़र्व हमें दे रखा है 15,000. 20,000 की लाइबिलिटी होगी जबकि हमारे पास रिज़र्व से 15,000 है. हमारे पास रिज़र्व है 15,000 और 20,000 की हमारे पास क्या आ गया है, क्लेम आ गया है. तो आपको हमने पहले भी सीखा है 5,000 रिज़र्व से भी ज़्यादा एक्सीड करके है. जब 5,000 रिज़र्व से भी ज़्यादा एक्सीड कर जाएगा इट मीन्स इट विल बिकम आवर लाइबिलिटी, इट इज़ बिकम आवर लॉस एंड लाइबिलिटी इज़ इंक्रीज्ड बाय 5,000 क्योंकि क्लेम बढ़ गया है. तो हियर यू विल राइट वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम अकाउंट and it has been increased, liability is increased, so it will come on the debit side. Okay, the next line is given, Tanya brought 10,000 by check as her share of goodwill. यानी कि तान्या 10,000 जो है वो गुडविल लेके आई है. हमें तान्या का अमाउंट दे रखा है गुडविल का. एंड तान्या वॉज टू ब्रिंग इन फर्दर चेक ऑफ ₹15,000 एज कैपिटल. और तान्या 15,000 उसने अपनी कैपिटल लेके आनी है. सो रिवैल्यूएशन अकाउंट में वी हैव मेड ऑल द एंट्रीज और सारी एंट्रीज अगर आप हम कर चुके हैं. ऑब्वियसली हम इसकी बैलेंसिंग करेंगे. इफ़ यूल डू बैलेंसिंग विल गेट टू नो दिस इज़ 6,500 एंड दिस इज़ 5,500. इट मीन्स 1,000 रुपीज़ का आपका लॉस आ गया ऑन रिवैल्यूएशन एंड इट विल बी ट्रांसफर्ड टू द कैपिटल अकाउंट, ट्रांसफर टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. रिवैल्यूएशन का इफेक्ट सिर्फ ओल्ड पार्टनर पे ही जाता है. सुभाष एंड आशा वॉज देयर, आशाज कैपिटल अकाउंट एंड उनकी ओल्ड शेयरिंग प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दे के 3:2. तो 1,000 को 3:2 में आप बांटेंगे तो विल गेट 600 एंड 400. ये हमारा प्रिपेयर हो गया रिवैल्यूएशन अकाउंट. राइट. इसके बाद हमें सेकंड क्या बनाना है, हमें बनाना है कैपिटल अकाउंट.